ناظرین، میں ہوں ریاض ہانس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورلڈ پوسٹ پاکستان۔ آج ہم حفیظ خان صاحب کے آفس میں آئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے ادیب، بہت بڑے ڈرامہ نگار، خاص طور پر اردو ناول میں ایک معتبر نام ہے۔ ان کے ناول دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکے ہیں۔ سرائیکی ادب میں بھی ان کا بے تحاشا کام ہے۔ تو آج ہم ان سے لٹریچر کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ حافظ مظفر محسن بھی میرے ساتھ ہیں، تو امید ہے آپ خان صاحب کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ ہاں صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، ہمارا دور تھا، ہم نے ایم اے ایم ایس سی یا اس طرح کی سمپل کوالیفیکیشن جو تھی وہ کی، ہمارے سامنے اسکوپ تھا کہ ہم بی سی ایس کر لیں، سی ایس پی والا راستہ اپنا لیں، یا فوج جوائن کر لیں، یا اس طرح کے مختلف اداروں میں پوسٹیں آتی تھیں 16ویں 17ویں اسکیل کی۔ تو اب سارا یہ چینج ہو گیا۔ اب پینشن والی پوسٹیں جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئی، آئی ایم ایف کا پریشر یا جو کچھ بھی ہے، اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی ہنر مند ہونا چاہیے اب بندے کو، تو پھر وہ سروائیو کر سکے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس وقت جس عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ پہ جو آپ نے زندگی گزاری، مطلب ایک مخصوص قسم کا آپ کا شعبہ تھا اور اس میں اتھارٹی سمجھا جاتا ہے آپ کو، ادب کے علاوہ آپ کی یہ بھی ایک تعارف ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لیگل مطلب ڈگریاں ہیں یہ بھی ہنر مندی میں آتی ہیں، یا ہنر مند ہونا کیا ہے، یا سروائیو کون لوگ کریں گے اب؟ حافظ صاحب، جو ہے نا ہنر جو کتابی لرننگ ہے نا اس سے کہیں ہٹ کر ہے، جو ہم آبزرو کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، جس کو آج کل ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اگر آپ پہلے چلے جائیں، جب پہیہ ایجاد ہوا تھا، سب سے پہلی جو بڑی ایجاد ہے پہیہ ہے، پہیے کے بعد تمام کچھ آتا گیا۔ آپ دیکھیں، اور گزشتہ 2 صدیوں میں جتنی ترقی کی ٹیکنالوجی نے، اور پھر اس صدی میں آپ دیکھ لیجیے کہ صرف آپ 50 سال پیچھے مڑ کر دیکھیں تو جو خواب تھے وہ اب تعبیریں بن چکی ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جن لوگوں نے ایجادیں کی، چاہے وہ شعبہ طب کا تھا، چاہے وہ میڈیسن کا تھا، چاہے وہ کوئی اور انجینئرنگ کا تھا، جو بھی شعبے تھے، مثلا جسے ہم ترخانہ لوہارا کہتے ہیں اپنی زبانوں میں، اب وہ شعبے دیکھ لیں، آپ تعمیرات کا شعبہ دیکھ لیں، جہاں جہاں ایک جو فارمل لینگویج، فارمل لرننگ کے سے ہٹ کر لوگ ایک سکل لیتے رہے تھے کام کرنے کی، اور اس میں تنوع پیدا کرتے رہے، نوولٹی پیدا کرتے رہے، ایجادات کو آگے بڑھاتے رہے، ڈے ٹو ڈے اس میں تو میں سمجھتا ہوں وہ سارا ہنر ہے۔ اب ہمارے پاس ایجوکیشن کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ایجوکیشن ہے جو ہمیں صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ کیا تھی، ہمارا جغرافیہ کیا تھا، سوشل سائنسز کیا ہیں، اور لینگویجز کیا ہیں، لٹریچر کیا ہے۔ یہ جو تعلیم ہے یہ ہمیں ہنر آشنا نہیں کرتی۔ اب جو ہنر کے شعبے ہیں نا، آپ دیکھ لیں، پہلے جب انجینئرنگ یونیورسٹیز نہیں ہوتی تھیں تو پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ ہوا کرتے تھے، پھر انجینئرنگ یونیورسٹیز آئیں، میڈیکل کالج بنے، اس کے بعد اب آپ نے لا کی بات کی، تو جو لا کا شعبہ ہے یہ بھی ہنر ہے، اور ہنر پلس لرننگ ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں یہ شامل ہوتی رہتی ہیں، یہ سب چیزیں اس میں چلتی رہتی ہیں۔ تو آج کا جو دور ہے یہ جڑا ہوا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے۔ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا، اب میں اگر اسے سیفلی کہوں تو یہ گزشتہ 50 سال سے بڑھ کر آگے جائیں تو 75 سالوں پہ، 53 صدی پہ محیط ہے، جس کو ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ایرا آف انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ تو اس پہ اب ہر چیز ٹیکنالوجی سے جڑ گئی ہے۔ جو ایجادات، پہلے ریڈیو تھا، پھر ٹی وی آیا، اور پھر جب کیمرہ بنا، لیکن اب جب یہ آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل فون آ گیا، یہ کمپیوٹر یا پورا، اس میں کمپیوٹر بھی آ گیا، اس میں میڈیا بھی آ گیا، جو اس سے پہلے جو اب ابھی ایک موبائل فون کا کیمرہ لگا کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، پہلے اس کے لیے اتنے بڑے بڑے کیمرے آتے تھے۔ تو انسان یہ سکل سیکھتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے جو باقاعدہ وہ جو ایک عمومی تعلیم ہے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ تعلیم جو آپ کو سکل پرووائڈ کرتی ہے،
वो चाहे आप किताब से पढ़ें, चाहे ऑब्जर्व करें, चाहे किसी से वैसे सीख लें, तो आप वो काम सीख जाते हैं। वो हुनर है जो आजकल हुनर का दौर है, वो जुड़ा हुआ है सारा आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। अल्टीमेटली आईटी पे ही बात। आईटी पे सारी बात चल रही है। जिसे हम पहले था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी, वो भी सारी आईटी में आ गई। तो अब दौर जो है ये आगे, अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लें, जी बिल्कुल। वो सारा उसमें। और मैं ऐसे ऐसे नौजवान देख रहा हूँ कि जिनकी तालीम मैट्रिक से ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो घर बैठे हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत वो लाखों डॉलर कमा रहे हैं बैठे। एक्सपर्टीज उनकी जो है वो बड़ी हाई लेवल मैंने की देखा है कि वो रात को, जब पूरी दुनिया में दिन होता है, हमारे यहाँ रात होती है, तो वो रात को बैठते हैं, सारी रात काम करते हैं और वो लाखों डॉलर कमा रहे हैं। अब जो एक फॉर्मल, या जिसे कहते हैं हमारे दौर के अमूमी के एक होता था कि हमने बीए करना है, कहीं गलत लग जाना है, मैट्रिक करना है तो कहीं चपरासी लग जाना है, तो वो दौर ख़त्म हो चुका है। अब हर काम मशीन करे। सर एक मतलब रियाज साहब ने आपको तारुफ कराया सराइकी अदब जी। या मुख्तलिफ आला क्वालिफिकेशंस आपने, और आपकी मतलब जो प्रिंटिंग जो चीज़ें आपकी छपती जी। रही, या पॉपुलैरिटी का एक जो आपका दूसरा शोबा है अदब, जी। तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ। अब फैज़ अहमद फराज ये इस लेवल के मतलब कहाँ चले गए, अहमद नदीम कासमी, ये अब मतलब नई नस्ल में ऐसे कोई नज़र नहीं आ रहे लोग, ये क्या है? अच्छा, इसके पीछे भी वही कार फरमाया है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया। पहले ये लोग होते थे, बड़े शहरों में इनका नाम होता, फिर मुशायरे पढ़े जाते थे, और जो बेचारे शायर होते थे ना मुज़ाफ़ात के, उनका कोई नाम ही नहीं होता था और वो वैसे पैरिश हो जाते थे अपनी लाइफ में। अब ये है कि सोशल मीडिया की बदौलत आपको बेतहाशा लोग सामने आ रहे हैं, और उन बेतहाशा लोगों में से किसी एक को चुनना वो बड़ा मसला बन गया। अभी मैं देख रहा था कि कराची में जो साकरान शहर कायद का एक मुशायरा हो रहा है, आप ही पहुंचे। तो हाँ वहाँ पर मुशायरे, अब वो जो है ना, लोगों का इस हद तक अज़्दहाम है लिखने वालों का कि जो एक गज़ल लिखता है वो सोशल मीडिया में रखा देता है अपनी। तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं, तो उसमें जो रियाजत का अंसर था वो कम हो गया, वो जो नाम बनते थे वो कम हो गए। लेकिन अब भी आप देखिए, जो एक प्रोसेस से गुजर के आते थे, सीखने का अमल, आप कुछ वो बहुत सारे खत्म हो लोग गया। ऐसे अब जिन्होंने जो कुछ सीखा नहीं है, जी। मगर वो सोशल मीडिया पे उन्होंने इस कदर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जी, वो अपने जी। आप को मनवाने के चक्कर में। अब जो चार अफसाने नुमा अफसानचे लिख लेता है तो उसकी भी किताब छपी जा रही है, और किताबें ज़्यादा छप रही हैं, किताबें पढ़ने वाला कोई देखिए, नहीं है। आपके सफ़र से मैं वाकिफ़ हूँ। जी। आप गवर्नमेंट सर्विस में आने से पहले भी लिखते थे। मैं तो 71 से लिख रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में था। सेवन मुझे लिखते 53 साल हो गए, 53 साल हो गए, तो मैं 53 साल छपते हुए हो गए। और रेडियो से भी मुंसलिक रहे, रेडियो में अखबारात प्रोड्यूसर में भी रहा, लिखते सब कुछ रहे। रहा, अखबारात से रहा, टीवी से रहा, मुल्किन से। तो ये सारा एक दौर गुजरा। तो अब देखें, जो अच्छी शायरी कर रहे हैं उनका नाम तो है। आपके साथ हाफिज साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने कल निगारी में, शायरी में इन्होंने नाम कमाया। अब देखिए यहाँ पर कितने नाम हैं आज के दौर में। शोरा जो मौजूद है आपके लाहौर में मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है, कराची में चले जाएँ। मैं कराची में अभी उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, तो कितने नाम हैं, और वहाँ के जो मुशायरे होते हैं, जो अच्छे नाम हैं वो बन रहे हैं, और जो नाम बड़े हैं ना वो एक दिन में नहीं बन जाते, उनको बनने में एक सफ़र लगता है। और हो सकता है कि जो नाम आज हमारे लिए गुमनाम है, तो वो कल के फैज़ बने, और कल के वो फराज बने, और उनके नाम उसी तरीके से जिंदा हों जैसे आज उनके नाम जिंदा है। सर ज़रूरी है कि पार्टी हाउस में जिस तरह पहले होता था, मतलब मुझे कॉलेज जिस तरह आपने बताया 71 से आप मतलब कॉलेज गोइंग थे, तो आप अदब से वाबस्ता हो गए। तो हम देखते रहे पार्टी हाउस में ए हमीद, मिर्ज़ा अदीब, मतलब अशफाक साहब, इस लेवल के नाम, यूनस अदीब, ये कोई आप बड़े नाम लें, वो सब उधर, नासिर काज़मी सब उधर बैठते थे। तो आप समझते हैं कि इस तरह की बैठक होनी चाहिए पार्टी हाउस टाइप, जिस तरह लाहौर मुल्तान में भी एक उन्होंने पार्टी हाउस टाइप बनाया है, वहाँ मतलब मैंने देखा सबकी तस्वीरें लगाई हुई हैं, और बड़ा आलीशान एक वो भी। तो क्या हर शहर में ये होना चाहिए इस तरह का? लेकिन वो मुल्तान में बंद हो गया, लेकिन वहाँ बैठता कौन है? अब पार्टी हाउस पे जाएं आप, मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, ना वो जुमला कहना चाहता हूँ कि पार्टी हाउस में माहौल क्या बन गया यहाँ करीबन, और वहाँ कौन लोग बैठे होते हैं। तो पहले ये था हाफिज़ साहब के जो तख्लीक कार थे, शायर थे, अदीब थे, नसर निगार थे, सारे लोग,
वो आपस में बैठते थे एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ के लिए, या एक दूसरे के काम पे निगाह रखने के लिए, कौन क्या लिख रहा है, मुझे कैसा करना चाहिए, तनकीद हो रही है खुल के। हो रही है ना। आजकल सब कुछ वही फेसबुक ने संभाल लिया है। अब जो हमारी फिजिकल प्रेजेंस है किसी जगह पे, उसकी ज़रूरत नहीं। आप एक पोस्ट लगाते हैं, उसमें गालियाँ भी पड़ रही हैं, तारीफ़ें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। वहाँ आप अगर ने कोई ऐसी वैसी एक बात कर दी तो जो लोग आपसे डिफर करते हैं वो आपको गाली देना शुरू कर शोर देते मचा लें। हैं। वहाँ गालियाँ मलफूफ पड़ती थी पार्टी हाउस में, चलती थी वहाँ भी नेगेटिव गुफ्तगू चलती भी। थी। वहाँ एक दूसरे के गिरेबान पकड़े जाते थे और बहुत कुछ होता था वहाँ पार्टी हाउस में। आप उनकी जो दास्तानें हैं तो देखिए, आप तो लाहौर के हैं, बेहतर जानते हैं। लेकिन सर वो आंख, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ जी। तो मेरे कोई हया भी शर्म भी तो होगी ना, मैं आपके साथ एक लिमिट से ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता। फेसबुक पे तो आपकी मतलब वो हया, वो आंखों में आंखें डाल के बात तो नहीं हो रही। ये किसी हद तक है। अब जो है ना अच्छे लोग हैं वो ये फेसबुक के झगड़ों में नहीं पहुंचते, झमेलों में नहीं पड़ते। सही। लेकिन जिन्होंने वहाँ टी हाउस में बैठकर या किसी रेस्तोरां में या किसी सड़े पर गिरेबान पकड़ने हैं तो वो यहाँ भी गिरेबान पकड़ रहे होते हैं, लेकिन वो गिरेबान की बजाय वो ज़बान को आलूदा कर रहे होते हैं और अपनी तहरीर को आलूदा कर रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि सीरियस लोग जो सीनियर लिखने वाले हैं वो सबके साथ तो अटैच नहीं है फेसबुक के साथ? वो नहीं, शायद मैंने देखा है, शायद ही कोई ऐसा मैंने संजीदा लिखने वाला देखा हो जो फेसबुक पे अटैच ना हो। ये दूसरी बात है कि वो फेसबुक पे पोस्ट ना लगाए या फेसबुक पे कमेंट ना करे। मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती रहती तो वो बताते रहते हैं कि फेसबुक पे फलां 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 देखा, फलां को देखा, आपने वो देखा, फलां को देखा। वो देख कर गुजर जाते हैं, ना वो कमेंट करते हैं और ना ही वो उसमें ऐड करते वो हैं। फेसबुक पे उस तरह से एक्टिव नहीं होते जिस तरह से वो एक्टिव हैं, वो हम आपसे ज़्यादा एक्टिव हैं। मुदाखलत नहीं करते कहने। वो उस पर ना वो अपनी सीनियरिटी के सबब या उनकी जो मिजाज है, तबाह है, उसके सबब वो उस पर कमेंट नहीं करते, ना उस पर अपनी कोई पोस्ट लगाते हैं। मैं अभी देखता हूँ कि हमारे जो बहुत ही सीनियर लोग हैं उसमें से कभी कभार कोई अपना शेयर लगा देता है या कभी कभार कोई पोस्ट। अब मैं कराची की हवाले दूँ था, जितने वहाँ सीनियर लोग हैं सारे फेसबुक देखते हैं लेकिन अपना ऐड नहीं करते। तो ये वही बात है ना कि मैं एक गली से, मैंने बाजार से गुजरना है, अब मेरे सर पे टोपी है, मेरे कपड़े भी सफ़ेद हैं, मैंने वहाँ से गुजर जाना है। अब ये और बात है कि मैं हर किसी को छेड़ता हुआ गुजरूँ, हर किसी का ठट्ठा मजाक उड़ाता हुआ गुजरूँ, या मैं आराम कर अपनी राह लूँ। लेकिन ये बात नहीं होती कि बाजार मेरी निगाह में ना हो। एक तबका ऐसा है हाँ। जो खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा है। पूरा फेसबुक, पूरा सोशल मीडिया उनकी निगाह में है। ये अलग बात के हाँ। वो उनके इन्वायरमेंट। लेकिन वो ऐसे ना जैसे शुरफा गुजरा करते थे, वो शुरफा की तरह गुजर जाते हैं, ना वो किसी को छेड़ते हैं, ना किसी को अपने ऊपर गिरा लगाने की इजाज़त देते हैं। वो देखिए तो किताब सर किधर गई? मतलब जब फेसबुक, सोशल मीडिया, आप किसी ने अपनी शायरी लगा दी, किसी ने पूरी बुक लगा दी, जो मैंने आपको ये बुक गिफ्ट की है, जी। ये मेरी अब अमेज़ॉन इधर उधर सब पे लग गई है, जो मर्जी पढ़े। तो अब किताब जो हाथ में आती थी बुक, उसकी क्या सूरत हाल होगी? कैसे किताब की अहमियत में कभी आई है? नहीं। हार्ड बुक नहीं है किताब, हार्ड बुक वैसे के वैसे है। आप देख लें कि जो हमारे यहाँ बुक फेयर्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ लाखों रुपए की किताबें बिकती हैं। अगर ये किताबें ना बिका करती तो जितने बड़े पब्लिशिंग हाउस हैं ना, ये बंद हो जाते हैं। आप देखिए बुकानर को देखिए, संडे मील को देखिए, या इधर अक्स वाले बैठे हुए हैं, फिक्शन हाउस वाले बैठे हुए हैं। आखिर इनकी रोटी रोजी चल रही है ना, इनका घर पूरा हो रहा है, किताबें छप रही हैं ना। सिर्फ ये है कि आप देखें कि आजकल पढ़ा क्या जा रहा है। आजकल जो पढ़ा जा रहा है, नंबर 1 पे है मजहबी किताबें, वो पढ़ी जाती हैं। दूसरे नंबर पे पढ़ी जाती हैं जो उसमें सियासी कंट्रोवर्सी को डिस्कस किया गया, ये दोनों हार्ट से हैं। तीसरा नंबर पे आ जाता है फिक्शन में नावल। अफसाने की किताब नहीं बिकती, शायरी नहीं बिकती, शायरी कतन नहीं बिकती। मैंने आज के दौर के बहुत बड़े बड़े शायरों को अपनी किताबें खुद छपवा कर अपनी रकम से और मुफ्त तकसीम करते हुए मैंने देखा कि अगर बिकता है तो सिर्फ नावल बिकता है, बायोग्राफीज बिकती हैं
اور نان فکشن کی بات کروں. بس اس میں اگر نان فکشن میں آپ نے جیسے میں نے پہلے عرض کیا پولیٹیکل ڈفرینس پہ بات کریں آپ بہت بکے گی. آپ مذہب پہ لکھیں بہت بکے گی. سر یہ مذہب میں کچھ نئے اسکالر آئے ہیں. مطلب کوئی کہتا ہے کہ جی یہ پراپر جس طرح مطلب قرآن پاک میں نے حفظ کیا ہے اس کے بعد باقاعدہ وہاں 4 سال کا 6 سال کے ڈپلوم میں انہیں آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی اداروں میں. تو کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے مطلب وہ باقاعدہ فارغ التحصیل نہیں ہیں لیکن وہ آئے ہیں انہوں نے اپنے انداز میں مطلب ہائی لیول کے آپ کہہ لیں کہ مداخلت وہ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مذہب کو کوئی نیگیٹو کوئی امپیکٹ تو نہیں ایسا بنے گا؟ لوگ ان کی بات توجہ سے سن رہے ہیں کیونکہ یہ ایک کمال ہوتا ہے کہ آپ کو گفتگو کا فن آتا ہے یا آپ مطلب اپنی بات جو ہے وہ ایسے کرتے ہیں کہ دل پہ اثر کرتی ہے چاہے وہ اس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیگیٹو. حافظ صاحب یہ ہر دور میں رہا ہے. ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کہ فرض کریں مجھے آپ کی کہی ہوئی بات اچھی لگتی ہے, کسی دوسرے صاحب کو بات اچھی لگتی ہے, ریاض ہاں صاحب کی بات اچھی لگتی ہے, کسی کو کسی اور صاحب کی بات اچھی لگتی ہے. تو بات اچھی لگنے کے پیچھے بھی ایک ہنر کاری ہے. وہ کیا ہے؟ میں اسی کی بات سننا چاہتا ہوں جو میرے مطلب کی میرے مزاج کی بات کرے گا. جیسے میں سوچتا ہوں نا, جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں چاہے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں, وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے آڈینس کیا ہے, آڈینس کس قسم کی بات سننا چاہتی ہے, اسی قسم کی بات کرتے ہیں اور وہ بڑے پاپولر ہو جاتے ہیں, کلیپ لے جاتے ہیں. اب فرض کریں نا میں سفر کر رہا ہوں جہاز میں, کسی بس میں بیٹھا ہوا, ٹرین میں بیٹھا ہوا, میرا تعارف ہوتا ہے فلاں صاحب سے, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ وہ انجینئر ہیں, کیمیکل انجینئر ہیں. تو اگر مجھے کیمیکل انجینئرنگ کی الف بے آتی ہے, شعبت آتی ہے, تو میں ان سے وہی بات شروع کر دوں گا. وہ جو انہوں نے میرے ساتھ کھلنا تھا 2-4 گھنٹے کے بعد, وہ میرے ساتھ 5 منٹ میں کھل جائیں گے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ ہمارے جو صاحبان جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا جتنے ہمارے دوسرے اسکالرز ہیں, چاہے وہ سیاسی رہنما ہوں چاہے مذہبی رہنما ہوں, اسکالرز ہوں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی تار پہ ہاتھ رکھیں گے تو اس میں کون سا سر نکلے گا. تو وہ اسی طریقے سے وہ بات کو چلاتے ہیں. اور سر سر آپ نے سر کی بات یہ کی شروع ہے, سے چلا رہے ہیں, آج کی بات نہیں. صحیح, سر کی بات کی ہے. تو میں بھی ملتان رہا ہوں, آپ مطلب پتہ ہے آپ کو. تو وہاں ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, سریا ملتانی کا ہماری مطلب بزرگ فنکار ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سارنگی میڈم کیا مطلب ساز ہے. تو وہاں استاد بشیر صاحب بیٹھے تھے, وہ بالکل باریک سے اور بڑا چھوٹا سا جسم اور بڑا بالکل جیسے بندہ بہت مطلب کمزوری. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مظفر یہ سارنگی وہ ساز ہے, بجانے والا بشیر صاحب کی طرح ہو جاتا ہے, لکڑی کے ساتھ لکڑی ہو جاتا ہے. تو سر اس طرح دیکھیں جس طرح ملتان میں یہاں بھی چند ایک تھوڑے بہت, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میوزک بھی مطلب ساتھ ساتھ جس طرح پاک ٹی ہاؤس ہے تو میوزک کی طرف یہ کوئی مطلب انسانی دماغ یا انسانی ذہنوں کو یہ کیا مطلب اس کا کوئی امپیکٹ؟ 81 میں جب میں پروگرام پروڈیوسر تھا ریڈیو ملتان پر, اور اس سے پہلے ریڈیو اسلام آباد پر, تو میرے پاس کچھ عرصہ شعبہ موسیقی بھی رہا. تو اس کے بعد میں ریڈیو چھوڑ کر چلا گیا 82 میں. میرے ساتھ جو میرے میوزک اسسٹنٹ ہوتے تھے ان کا نام تھا جمشید رضا, بہت اچھے اور میوزک کو سمجھنے والے تھے. یہ جو آج کل کے بڑے بڑے جو آپ کے سازندے ہیں یا جو میوزک کمپوزرز ہیں, یہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جو 81-82 میں میرے ساتھ کام کرتے تھے ریڈیو ملتان پر, اور بہت بڑے تخلیق کار تھے. تو موسیقی جو ہے اس کا ایک اپنا جیسے کہیں نا دائرہ کار ہے, ڈومین ہے, اور اس کی انسانی طباع پہ کیا وہ جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. اس میں ہے نا وہ آپ کی محسوسات کو اسٹریم لائن کرتی ہے, آپ کے مزاج کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو اس میں برانگیختہ کرنا ہو, اس کو سود کرنا ہو, اس میں آپ کو مدھم لے جانا ہو. آپ اگر ہائپر ہیں تو آپ کو ہائپو کرتی ہے,
हाइपो हैं तो आपको हाइपर भी कर देती है, दरमियान में आप तैरना चाहें तो दरमियान में ले जाती है। मौसीकी तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जो एक पैदा करता हमारे लिए एटमॉस्फियर है, जो उसमें एक ये पैदा की गई है सहूलत इंसान के लिए कि जब उसने पहला जो सांस बना था वो तो बीट का था ना, कि उसने इंसान ने लकड़ी पर ये बजाया। उसके बाद फ्लूट आया कि जो सांस के साथ उसने एक खाली पाइप उठाया, बांस उठाया तो उसमें उसने फूंका, वो हो गया। फिर ये तार आई। बेसिकली ये 3 सांस बने, एक बीट का था, एक फूंक से था और एक तार से था। उसके बाद जितनी अब आप आए हैं ये तो उसकी डिजिटल इन्हीं को मतलब वो एक्सपेंड हो गया। आप देखिए कि जो हमारे पास ये राग हैं, रागनियाँ हैं, ठाट हैं, कल्याण है, ये ठुमरियाँ हैं, दादरे हैं, ये सारी चीज़ें आपके मिजाज को सूद करती हैं। और ये तमाम इनके जो औकात कार हैं कि कौन सा राग किस वक्त गाया जाएगा, कौन सी मौसीकी किस वक्त होगी। एक ही राग होगा, एक ही गीत होगा, आपको रात को अच्छा लगेगा, दिन को अच्छा लगेगा, आपको रात को आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। या टाइमिंग की आपने बात की ना, राग सुबह 8 बजे ये है, रात को ये है, मतलब वो जो तानसेन या फलाने थे कि जी दिया जल रहा है और दिया बुझ जाएगा, या मतलब बारिश हो जाएगी, ये मतलब बात है। और आज के जो फनकार है ना हमारे नए लड़के, वो बड़े पॉपुलर हैं दुनिया में और उनके करोड़ों फॉलोअर हैं, और वो जिस वक्त चाहते हैं ना, मतलब ये बिस्किट पड़ा है ना, वो बिस्किट पे गुफ्तगू करेंगे कि ये बिस्किट बड़ा लजीज है, ये बिस्किट जो है बड़ा खस्ता है, वो तेजी से रैप उसको कह रहे हैं। तो वो इतने पॉपुलर हैं उनके गीत, तो उन्होंने कोई वो मौसीकी शायद सीखी है या नहीं। पॉपुलर होना और बात है जी और सुर में होना वो और बात है। पॉपुलर होने में ना आपने भी देखा होगा, आप हमसे छोटे हैं लेकिन आपने भी देखा होगा गली मोहल्ले में हमारे यहाँ वो बहुत सारे आया करते थे जिन्हें हम कहते थे कि वो उन्होंने बैरूबिये, उन्होंने वो रंग लगाया होता था, सर में हाथ में ईंट उठाई होती थी, मारने के लिए दौड़ते थे। तो ये बैरूब में तो तमाशा ताली धक्की बजा देते। जो हमारी पुरानी ताली थी वो आज हमारी व्यूज हैं, यूट्यूब पे व्यू है ना, वो ताली है। अगर उसमें कोई आपको ये कर देता है लिखा हुआ तो वो ताली है। अगर कोई व्यू देखें तो मैंने देख लिया आपको, चाहे वो आपका जो वीला आगे 30 मिनट का है, उसने 30 सेकंड भी देखा है, तो एक व्यू आ गया ना। ये और बात है कि आपका जो एयर टाइम था वो कितना कंज्यूम हुआ उसमें, ये सारी बातें उसमें आ जाती हैं। जो आपका एल्गोरिदम है वो आपके टाइम से बनता है कि किसने कितना टाइम देखा, 30 मिनट देखा, 20 मिनट देखा, 25 मिनट देखा, तो ये सारी बातें उसमें शामिल हैं। तो सुरीला होना, जो जिंदा रहने वाली मौसीकी है, आप देखिए सिर्फ 10 साल पीछे मुड़ के देखिए हमारे टीवी पर कैसे कैसे गुलकार आए थे जिनका एक एक गीत पॉपुलर हुआ और उसका कोई नाम लेवा भी नहीं, कुछ जानता भी नहीं। और जो हमारे बाकायदा गुलकार थे जिन्होंने सुर में गाया, सुर से मोहब्बत की, उनका नाम सदियों तक रहने के बाद भी जिंदा, सदियों के बाद। और शायरी में भी ऐसा है, शायरी में भी ऐसा है, यानी गालिब, मेहंदी हसन, हाँ, मीर तकी मीर, और इस तरह फिर ये सरिया मुल्तानी ले लें, मुल्तान, मैं कल ये बड़े नाम। मैं कल उसमें एक टीवी चैनल पर नेटफ्लिक्स पे मैं रात को देख रहा था एक सीरीज द ब्रोकन न्यूज़ के नाम से, इंडियन था वो। उसमें मैं देख रहा था कि जो हमारे यहाँ चैनल्स पे फेक न्यूज़ फैलाई जाती है उसके बारे में था, लेकिन उसका जो इंट्रो था उसकी हर एपिसोड का, उसमें फैज़ अहमद फैज़ की वो जो नज़र में बोल कर लब आज़ाद हैं तेरे, उन्होंने वो गवाही हुई थी उसके इंट्रो पे भी, और उसके क्लोजिंग पे जहाँ उनके टेलब चलते हैं, जहाँ सारे लिखा हुआ था वहाँ पर भी वही चल रही थी। तो मुझे बहुत मज़ा आया देखने का कि फैज़ साहब का नाम कहाँ फैज़ तो सर सदियों में आता है ना, फैज़ गालिब सर। एक मतलब ये मेरी रास्ते मेरे आला साहब से बात हो रही थी कि हमारी वज़ीर आला पंजाब की जो खातून है, इस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहबा, मतलब वो भी ये बड़े कैलिबर के लोग हमने देखा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर मरियम नवाज साहबा। तो लड़कियां अब CSP ऑफिसर्स भी बेतहाशा बन रही हैं, बड़े ओहदों पर भी बैठ रही हैं। तो ये क्या समझते हैं, ये मोटरसाइकिल भी अब उनको सहूलत है, मुआशरा भी उन्हें दे रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि मतलब ख़वातीन को मज़ीद कोई इस सिलसिले में एडवांसमेंट
मतलब मुआशरा इजाज़त देता है उनको? मैं आपसे अर्ज करूँ इस बात से कतई नजर, ख़वातीन को आपने जहाँ जहाँ मौका दिया है ना अपनी सलाहियत प्रूव करने का, उन्होंने प्रूव करके दिखाया। आप देखिए, अगर आपका वो यूट्यूब पे देखिएगा, इंडिया में एक म्यूज़िक ग्रुप आया, उसमें तबला नवाज, ढोलक नवाज, बांसुरी, क्लारनेट, सैक्सोफोन और कीबोर्ड से लेकर तमाम साज बजाने वाले ख़वातीन बैठी हुई हैं, और उनका जो गाने वाली हैं वो भी ख़वातीन हैं, उसमें कोई मर्द शामिल नहीं है। तो वो जो हमारे पुराने गीत थे ना 50s के 60s के, वो गा रही हैं। तो उनके पूरे 2-4 प्रोग्राम हैं, कई घंटे तक हुई थे वो, उनके वो जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने शो किए हुए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स है। वो देखिए कि आप देखें जहाज़ उड़ा रही हैं ख़वातीन। और इसी से मुझे याद आया, कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, मुल्तान की एक पायलट थी जो कमर्शियल पायलट थी, अपना जहाज़ उड़ाती थी, तो उनका जो त्यारा गिर गया तो उधर मुत्तहिदा अरब अमारात में, उनकी वहाँ डेथ हो गई है, उनका वो समंदर में गिर गया त्यारा। उनके साथ एक उनके पैसेंजर भी थे। तो लेकिन ये तो एक अलग बात है। अब देखें आर्मी में, एयरफोर्स में, तिब के शोबे में, इंजीनियरिंग के शोबे में, जहाज़ उड़ाने से लेकर ट्रेन चलाने तक, और थर में जहाँ हमारी कोयले की कानें हैं वहाँ तो ख़वातीन ट्रक चला रही हैं, कोयले से भरे हुए ट्रक वो लेकर जा रही हैं। मतलब कोई एजिटेशन नहीं अब होनी चाहिए, ख़वातीन को अब आना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए कि वो आपकी आधी आबादी है। जिस मुआशरे में आधी आबादी को मफलूज कर दिया गया हो, सिर्फ आलू गोश्त पकाने तक रख दिया गया हो, तो फिर कैसे? उन्हें सोचने दीजिए, अब आप सोचने दीजिए उन्हें। मैंने तो अपनी बेटियों को ये कहकर उन्हें कहा कि बेटा इक्वल अपॉर्चुनिटी आपके लिए पढ़ने की, इससे बेहतर है कि आप किसी ऐसे बदबूदार शख्स के बैठ के जुराबे धो बदबूदार, उससे बेहतर है कि आप अपने पाँव पे खड़े हो और अपनी शान से ज़िंदगी गुजारो। सर आप लीगल दुनिया से आपका ताल्लुक बेतहाशा है और अहम जगहों पे जी मसनद पे अल्लाह ने आपको बिठाया, तो मतलब ख़वातीन के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट, या आप समझते हैं कि हमारा हुकूमत जो है वो ख़वातीन को फैसिलिटेट करने के लिए, उनके छोटे छोटे जो उनको प्रेशराइज किया जाता है, मुआशरा जो उनको मतलब तंग नज़री से देखता है, आप समझते हैं कानून मतलब उनके साथ खड़ा है? देखें ना, कानून तो शुरू से ख़वातीन के साथ खड़ा है। अब जिस सोसाइटी में भी जाएँ, जो सोसाइटी जिसे सिविलाइज्ड कहते हैं, ये सोसाइटी का काम है, ये सोसाइटी के मर्दों का काम है कि वो सोसाइटी अपने हाफ कंपोनेंट को कितनी स्पेस देती है, कहाँ कहाँ उन्हें आजमाती है। आप किसी खातून को जगह देकर तो देखें ना कि वो ये काम आपने करना है, आप उस पर एतमाद तो करें ना। हमने तो उसे हमेशा शक की निगाह से देखा है, हमने उसे इनसिक्योर किया है। उसे सिक्योर बनाने की बजाय हमने ख़वातीन को, अपने घर की ख़वातीन को हमेशा इनसिक्योर किया। तुमने ये क्या पहना हुआ है, तुमने ये क्या करना है, तुम कहाँ देख रही हो, तुम कैसे आ रही हो, तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, किसके साथ आ रही हो, भाई तुम्हारे साथ है या फलां तुम्हारे साथ है, तुम गाड़ी खुद चला सकती हो नहीं चला सकती। तो देखें, जब ये सब कुछ होगा, ये तो हमने करना है, आपने करना है, ये हुकूमतों के काम नहीं होते। कारोबार करना हुकूमतों का काम नहीं होता, और सोसाइटी में चेंज लाना ये हुकूमतों का काम नहीं होता। ये सोसाइटी के अंदर से आवाज़ आती है तो सोसाइटी बनती है। इसीलिए अदब, मौसीकी, इन सब चीज़ों की तरवीज, ये मैं जो ये बात चीज़ें तो तरबियत बात करती रह है गई ना। थी ना, जो अदब, मौसीकी, फाइन आर्ट्स के तमाम शोबे, ये इंसान के अंदर का जो वहशी जानवर है ना, खूंखार, उसको ख़त्म करते हैं, उसकी खूंखारी को ख़त्म करते हैं, उसे मुहज़्ज़ब बनाते हैं। मुझे बताइए कि अदब, मौसीकी, फाइन आर्ट्स का कोई शोबा, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, जो भी है, आज तक इनके ज़रिए कोई मुतशद्दिद आदमी पैदा हुआ है जिसने कत्ल और गारतगरी की हो, जिसने अपने जैसे लोगों को जीने ना दिया हो? ये तो आपको सूट करते हैं। आपको जो आपके अंदर हार्मफुल एलिमेंट है शख्सियत में, उसको हार्मलेस करते हैं। तो ये इतनी सी बात है। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी खुशी आपसे। देखे ना, हमने वो
मुल्तान वाला दौर और आपका बचपन वो सब आपको याद करवा दिए किसी रिलैक्स होकर बैठेंगे जी किसी दिन इंशाल्लाह इस पे बड़ा ज़रूरी है ये लंबी गुफ्तगू चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट है कि हम ज़रा वो आपका जो सारे पीरियड है ना फिर खुल के उनको डिस्कस करें कि वो क्या है और जनूबी पंजाब से नहीं अर्ली एज में डॉक्टर खान साहब पहले मेडिकल में थे, हाँ मैं मेडिकल मेडिकल कॉलेज में भी था वो कंटिन्यू नहीं कर सके। ये यूनान में इस तरह के सब लोग होते थे जो कुश्ती को भी समझते थे, जो मतलब अदब से भी वाबस्ता थे, फलसफा भी उनको पता था सारा, और वो मतलब नजूमी भी कभी कभी, और आलम फाजल भी वो होते आपने थे। नजूमी की बात की है, कभी इस पे बैठेंगे मैं आपको नजूम पर बात करूंगा साहब की खासी दस्तरस और है। मैं आप पर डिस्कस होगी ये इल्म जफर के हवाले से। बहुत जी भाई ये तो मेरा शौक अच्छा, है। इल्म जफर, इल्मुल आदाद, क्याफा और अपना नजूम और फल्कियात, साहब की 2 किताबें हैं। अच्छा इस पर बात करें। ये तो सर अलहदा निशस्त चाहिए इस वाह जी ऐसा नहीं कोई संडे का दिन रखें, इंशाल्लाह। हाँ मिल बैठते हैं। सर बड़ी खुशी जिस तरह आपकी बागो बहार शख्सियत थी ना महफिलों में देखा है जी तो दिली खुशी हुई कि आप मतलब हर महफिल में और मतलब 1 to 1 भी आप अल्लाह ने आपको वही खुश मिजाज बनाया। कोशिश होती है कि हर मौजू पर बात कर सकें। नहीं है सर दस्तरस है आप आपकी। मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं। कोशिश एक ही वक्त में देखिए कि सरकारी जिम्मेदारियों के साथ साथ जी, आप न सिर्फ नावल लिखे, आपने फिक्शन के अलावा आपने कॉलम भी लिखे, मुख्तलिफ अखबार में 17 साल लिखा है। सराइकी अदब के लिए काम 17 किया साल आपने। तक मैंने कलम लिखे हैं, 11 साल तो नवाब में लिखा है, और ड्रामे भी लिखे आपने। जंग में लिखा है, खबरें में लिखा है, नई बात में लिखा है। वाह जी वाह। ओके थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन